کہ باغوں کے شہر کی فضا پھر سے زہر آلود، لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں سر فہرست۔ آلودگی کی مجموعی شرح 170 ریکارڈ، طبی ماہرین کی لاہوریوں کو ماسک لگانے کی ہدایات۔ اسموگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے گئے، دھواں چھوڑنے والی سینکڑوں گاڑیاں بند، فیکٹریوں پر بھی نظر۔ ایک دن کی بارش کے ریلیف کے بعد باغوں کا شہر ایک بار پھر آلودگی کی زد میں آ گیا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر رہا۔ شہر میں آلودگی کی مجموعی شرح 170 ریکارڈ کی گئی۔ عسکری 10 میں آلودگی کی شرح 171 ریکارڈ کی گئی۔ یو ایس کانسلیٹ میں ایئر کوالٹی انڈیکس 170 ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ہفتے بارش کا کوئی امکان نہیں۔ بینائی سے محروم افراد کے احتجاج کا 15واں روز، مظاہرین کے پریس کلب کے باہر ڈیرے، چند نابینا افراد ڈی جی سوشل ویلفیئر کے دفتر میں گھس گئی، مطالبات کے حق میں نعرے بازی۔ نابینا افراد نوکری اور مستقلی کے لیے 2 ہفتوں سے سڑکوں پر ہیں۔ سنوائی نہ ہونے پر معاملہ لاہور ہائی کورٹ جا پہنچا۔ نابینا افراد کے مطالبات کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نابینا افراد نوکری اور مستقلی کے لیے 2 ہفتوں سے سڑکوں پر ہیں۔ بینائی سے محروم افراد کا مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج 15ویں روز بھی جاری رہا۔ نابینا افراد نے شہر کے مختلف شاہراہوں پر دھرنا دینے کے بعد دھرنے کو سوشل ویلفیئر دفتر شملہ پہاڑی منتقل کر دیا ہے۔ نابینا افراد کا کہنا ہے کہ انہیں روزگار فراہم کیا جائے، نابینا افراد کے لیے ہمت کارڈ کا اجرا کیا جائے، نابینا افراد کا ماہانہ خصوصی الاؤنس 6,000 روپے سے بڑھا کر 10,000 روپے کیا جائے اور سرکاری محکموں میں معذور افراد کے کوٹے پر خالی نشستوں پر فوری بھرتی عمل میں لائی جائے۔ اے سی سے لے کر اوپر وزیر تک سب کو یہی فکر لہا کیا کہ ہم روڈ چھوڑ دیں اور احتجاج ختم کر دیں۔ ہمارے مسائل حل کرنے کا ان کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم روڈ چھوڑ دیں اور بس۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت 15 دن سے مذاکرات نہیں کر سکی۔ نابینا افراد کی جانب سے حکومتی ہٹ دھرمی اور بے حسی پر مایوسی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ 8,000 سے زائد ویکنٹ سیٹیں جو ایسی ہیں جن پہ آپ جیسا آنکھوں والا بندہ بھرتی نہیں ہو سکتا، تو یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، 500-600 ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ ریاست، ہم تو اندھے ہیں، ریاست کیوں گونگی بہری اندھی ہو گئی ہے۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر کی جانب سے دھرنے پر بیٹھے نابینا افراد کو 3 وقت کا کھانا دیا گیا۔ پنجاب بھر سے بے روزگار نابینا افراد دھرنے میں شریک ہیں۔ پولیس کی جانب سے سڑک کو رکاوٹیں لگا کر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا، جس وجہ سے شملہ پہاڑی کے اطراف ٹریفک روانی متاثر رہی۔ احتجاج کی تازہ ترین کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں حسنین اولک سے۔ جی حسنین، بتائیے گا کہ محروم افراد کے احتجاج کا 15واں روز ہے، مظاہرین کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے؟ آج جو بصارت سے محروم افراد ہیں ان کے جو احتجاج ہے، دھرنا جو ہے اس کا آج 16واں روز ہے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر میں اس وقت جو نابینا افراد ہیں وہ موجود ہیں اور یہاں پر ایک جو صورتحال ہے وہ بڑے ڈپریسڈ ہیں اور ان کو یقینی طور پر بڑی مشکلات کا سامنا ہے کہ ڈے فرسٹ سے انہوں نے لاہور پریس کلب کے باہر دھرنا دیا، اس کے بعد وہ چیئرنگ کراس چلے گئے، اس کے بعد وہ 8 کلب چلے گئے، پھر واپس دوبارہ وہ ڈیوس روڈ پر آ گئے پریس کلب کے باہر، اور اب 2 دن سے وہ یہاں پر موجود ہیں اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ مانے نہیں جا رہے۔ جو ان کے مطالبات ہیں کہ جو ڈیلی ویجر ہیں ان کو پرماننٹ کر دیا جائے اور جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے دیا جائے، لیکن جو حکومت ہے ان کی جانب سے کوئی بھی ایسی سنجیدہ کوشش کی نہیں گئی کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ مانے جائیں، کوئی ایسا لائے عمل تیار کیا جائے کہ دونوں پارٹی کو، دونوں فریقین، جو محکمہ ہے سوشل ویلفیئر اور جو نابینا افراد ہیں، ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا جائے، کسی بھی درمیانے ایک پوزیشن کے اوپر کوئی کنسنسس ہو جائے اور اس کے بعد ان کے مطالبات مان لیے جائیں اور یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہا ضرور گیا تھا کہ مطالبات ان کے ساتھ مذاکرات ہو گئے ہیں، لیکن نابینا افراد کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی مذاکرات نہیں ہوئے ہیں اور نہ ہی حکومت کی جانب سے عملی طور پر کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے بیان بازی ضرور ہوئی تھی، عملی طور پر کوئی بھی یقین دہانی نہیں کروائی گئی۔ حسنین اولک آپ کا بہت شکریہ۔ یہاں پر بات کریں ایجوکیٹرز کی مستقلی، پینشن اور لیو انکیشمنٹ میں اصلاحات قبول نہیں۔ گرینڈ ٹیچرز الائنس نے تعلیمی سرگرمیوں کے بائیکاٹ کے بعد ڈنگی سرگرمیوں اور سرکاری ڈاک کا بائیکاٹ کر دیا۔ جنرل سیکرٹری رانا لیاقت علی کہتے ہیں کہ اسکولوں میں اساتذہ کسی بھی قسم کی ڈاک نہیں نکالیں گے۔ اسکولوں میں ڈینگی سرگرمیوں کا بھی مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی، پولیس نے شکنجہ کس دیا، کریک ڈاؤن کی تیاری۔ بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور کے خلاف مقدمہ درج، بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سمیت دیگر رہنماؤں کے خلاف 9 مئی کی طرز پر پرچہ کٹ گیا ہے۔
20 मुकदमात हाई प्रोफाइल करार, शेख इम्तियाज, हमाद अजहर, सलमान अकरम राजा, अली इम्तियाज बड़ाई शामिल। मुकदमात में दहशत गर्दी की दफात भी शामिल हैं। लाहौर में तहरीक इंसाफ के एहतजाज और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर लाहौर पुलिस क्रैकडाउन के लिए तैयार है। लाहौर पुलिस दर्ज मुकदमात के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई करेगी। पीटीआई रहनुमाओं पर दर्ज मुकदमात में पुलिस मुकाबलों, दहशत गर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत और डकैती की दफात भी शामिल हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारियों के लिए CIA, ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन विंग की टीमें तश्कील दी गईं। पुलिस रिकॉर्ड में एहतजाज पर दर्ज होने वाले 20 मुकदमात को हाई प्रोफाइल करार दे दिया गया। बानी पीटीआई और उनकी बहनों समेत पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई की तर्ज पर मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। बानी पीटीआई को दहशतगर्दी दफात के तहत 4 मुकदमात में 109 में नामजद मुल्जिम करार दिया गया है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी लाहौर में एहतजाज के लिए लोगों में इश्तियाल पैदा करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बानी पीटीआई को जेल में मिलने वाली गैर मामूली सहूलियात और मुलाकातें एहतजाज की वजह बनी। शेख इम्तियाज, हमाद अजहर, सलमान अकरम राजा, अली इम्तियाज बड़ाइच और दीगर दहशतगर्दी की दफात में नामजद हैं। 3 से 6 अक्टूबर तक पीटीआई क़यादत और कारकुनों के खिलाफ 23 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। 6 अक्टूबर को दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमात में 129 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जानिब से दर्ज मुकदमात में अब तक 800 नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की काविशें, कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम तेजी से जारी है। शायकीन क्रिकेट के लिए सीटों की गुंजाइश में 10,000 तक इजाफा किया जाएगा। मंसूबा बर वक्त मुकम्मल करने के लिए 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम 24 घंटे जारी है। वाटर रिजर्वर सिस्टम का काम आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। कज़ाफी स्टेडियम की बेसमेंट की छत डाल दी गई, जबकि 2 हफ्ते में मेन बिल्डिंग की छत भी डाल दी जाएगी। कज़ाफी स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट की गुंजाइश में इजाफे के लिए तमाम एनक्लोजर्स गिरा दिए गए। स्टील स्ट्रक्चर के जरिए सीटों की गुंजाइश 22,000 से बढ़ाकर 30,000 से ज्यादा कर दी जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि कज़ाफी स्टेडियम का काम मुकम्मल करने के लिए 2.5 माह का वक्त कम है, लेकिन हम अपनी टाइम लाइन पर काम मुकम्मल कर लेंगे। फर्स्ट फ्लोर की छत भी डल जाएगी इंशाल्लाह ताला। बाकी रीप्रोफाइलिंग का काम शुरू हो गया, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है। तकरीबन ये आप एक तरह समझ लें कि ये एक नया ब्रांड न्यू स्टेडियम बनने जा रहा है, सिवाय एक पिछली दीवार के सारा कुछ नया बनने जा रहा है। मोहसिन नकवी मुतादिद बार इस अज़्म का इजहार कर चुके हैं कि कज़ाफी स्टेडियम का काम बर वक्त मुकम्मल होगा। भारत समेत तमाम टीमें पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खेलने आएंगी। वसीम अहमद, सिटी 42। सरकारी स्कूलों के 60 लाख तलबा के लिए बड़ी खबर, बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ की रकम बढ़ा दी गई। प्राइमरी लेवल में गर्ल्स को 2500 और बॉयज़ को 2000 वजीफा दिया जाएगा। सेकेंडरी लेवल में गर्ल्स 3500 और बॉयज़ 3000 लेने के हकदार होंगे। वज़ाइफ के लिए वालिदैन की BISP में रजिस्ट्रेशन लाजिम करार। महकमा खजाना ने असातिज़ा की तनख्वाहों और दीगर दफ्तरी अखराजात के लिए ये बजट जारी कर दिया है। महकमा खजाना ने महकमा हायर एजुकेशन को 13.16 अरब रुपए जारी किए हैं। महकमा खजाना ने महकमा हायर एजुकेशन को तनख्वाहों और ऑपरेशनल अखराजात के लिए ये बजट जारी किया है। महकमा खजाना ने महकमा स्कूल्स एजुकेशन को 2.84 अरब रुपए जारी किए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया है। सरकारी स्कूलों में जेर तालीम तलबा के लिए अच्छी खबर, बेनजीर तालीमी वज़ाइफ की रकम बढ़ा दी गई। वज़ाइफ की रकम नर्सरी ता 12वीं क्लास तक स्कूल पढ़ने वाले बच्चों की वालिदा को मिलेगी। वालिदैन को वज़ाइफ के हुसूल के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाने की हिदायत जारी कर दी। बेनजीर तालीमी वज़ाइफ बढ़ाई गई रकम के मुताबिक प्राइमरी लेवल में 2500 गर्ल्स और बॉयज को 2000 रुपए वजीफा दिया जाएगा। सेकेंडरी लेवल में 3500 गर्ल्स और बॉयज को 3000 रुपए वजीफा दिया जाएगा। हायर सेकेंडरी लेवल में 4000 गर्ल्स और बॉयज को 3500 रुपए वजीफा दिया जाएगा। प्राइमरी लेवल मुकम्मल करने पर 3000 रुपए का इजाफी वजीफा भी दिया जाएगा। महकमे हायर एजुकेशन ने MA पास बेरोजगार नौजवानों से हाथ कर दिया। कॉलेज लेक्चर की बजाय 8 माह के लिए CTI की भर्ती शुरू कर दी। CTI को 50,000 माहाना तनख्वाह मिलेगी। 8 माह बाद फारिग हो जाएंगे। महकमा हायर एजुकेशन का महकमा खजाना के एतराज के बाद नया फैसला। महकमा हायर एजुकेशन ने MA पास नौजवानों के साथ हाथ कर दिया। MA पास बेरोजगार नौजवानों को मुस्तकिल लेक्चरार भर्ती करने की बजाय 8 माह के लिए CTI की भर्ती शुरू कर दी। CTI को 50,000 रुपए माहाना तनख्वाह मिलेगी।
और 8 माह बाद नौकरी खत्म हो जाएगी। पंजाब में इस वक्त लेक्चरर्स की 7,300 आसामियां खाली हैं। हुकूमत मराहत और पेंशन से बचने के लिए आर्जी बुनियादों पर भर्ती कर रही है, जिससे आर्जी लेक्चरर्स दिलजमी से नहीं पढ़ाते। जराये के मुताबिक हुकूमत की इस पॉलिसी के बाइस ही तलबा का रुझान प्राइवेट कॉलेजेस की जानिब ज्यादा होता है। वाज़ेह रहे कि महकमा हायर एजुकेशन ने महकमा खजाना के एतराज के बाद ये फैसला किया है। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। गढ़ी शाहू अलामा इकबाल रोड से मुंसलिक गलियों में बिजली के लटकते तार व बाले जान बनी है। देरीना मसला कई साल गुजरने के बावजूद हल न हो सका। अहले इलाका कहते हैं कि इन तंग गलियों में बिजली के हाई वोल्टेज तारों का लेवल निहायत नीचे है। खसूसन बारिशों के दिनों में इन गलियों से गुजरना मौत को आवाज देने के मुतरादिफ होता है। लेस्को इंतजामिया को मुतअद्दिद बार तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई, मगर अवामी मसाइल हल करना उनकी तरजीह नहीं। फाजिया कॉलोनी शाह जमाल का शरीफ पार्क इंतजामिया की नाअहली के बाद सबाही के दोहाने पर पहुंच गया। निकासी आपके नाकिस इंतजाम के बायस पार्क की घास और सब्जा उजड़ गया। जगह जगह काई जमने से पार्क की जमीन बंजर हो गई। मक्खियों ने इंतजामिया से अपील की कि पार्क की हालत ज़ार को बेहतर बनाकर उसकी खूबसूरती को बहाल किया जाए। नर्सिस की बड़ी तादाद ड्यूटी से गैर हाजिर। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने तवील गैर हाजिर नर्सिस का डाटा तलब कर लिया है। डीजी नर्सिंग, एमएस, प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज से रिपोर्ट तलब कर ली गई। ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाली नर्सिस के खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने तवील गैर हाजिर नर्सिस का डाटा तलब कर लिया। नर्सिस की बड़ी तादाद की ड्यूटी से तवील गैर हाजिरी का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने डीजी नर्सिंग, सरकारी अस्पतालों के एमएस साहिबान और प्रिंसिपल्स नर्सिंग कॉलेजेस से गैर हाजिर नर्सिस की रिपोर्ट तलब की है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के मरासले में कहा गया है कि नर्सिस रुखसत के बाद वापस नहीं आई या बगैर छुट्टी गैर हाजिर रहीं। नर्सिस की गैर हाजिरी की रिपोर्ट महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को क्यों नहीं की गई? मरासले में कहा गया है कि 1 बरस से जायद अरसा से गैर हाजिर नर्सिस की तफसीलात फराहम की जाएं ताकि उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा सके। शहर की अदालतों में दिन भर की कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। 2019 में बल्दियाती इदारों को तहलील करने के 5 साल के बाद दरख्वास्तों पर समाअत। 3 रुकनी बेंच में शामिल एक फाजिल जज की केस की समाअत से माजरत के बाद फुल बेंच तहलील हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दफा 144 के निफाज के खिलाफ दरख्वास्त। हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत के वकील को जवाब जमा करवाने के लिए 10 रोज की मोहलत दे दी। नाबीना अफराद के मुतालबात की मंजूरी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत नाबीना अफराद के मुतालबात मंजूर करने का हुक्म दे। पीटीआई के एहतजाज पर सलमान अकरम राजा एडवोकेट समेत दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा एडवोकेट की 15 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 5 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज, पुलिस पर पथराव और तशद्दुद के 4 मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी ने मुसर्रत जमशेद चीमा और अवैस यूनस समेत 129 मुलजमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। गर्ल्स कॉलेजेस के लिए चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम फॉर विमेन का इफ्तिताह। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। 19 विमेन कॉलेजेस को बसें दे दी गई। 76 कॉलेजेस को 3 मराहल में बसें मिलेंगी। मरियम नवाज शरीफ ने बसों की चाबियां कॉलेजेस प्रिंसिपल्स के हवाले की और बसों का मुआयना भी किया। मरियम नवाज शरीफ ने गर्ल्स कॉलेजेस के लिए चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम फॉर वुमेन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बसों की चाबियां कॉलेजेस प्रिंसिपल्स के हवाले की। मरियम नवाज ने बसों का मुआयना किया और वुमेन कॉलेजेस की तालिबात से मुलाकात की। वज़ीर आला को सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर फरूख नवीद ने ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की हल्का PP 150 आमद। मुख्तलिफ यूसीज का दौरा किया, अहले इलाका से मुलाकातें की, मसाइल पूछे। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने शहरियों की खुशी और गम में भी शिरकत की। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अहमद खान के भतीजे के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। मोहम्मद फ़हद, मियाँ फ़ारूक, खादिम हुसैन, चौधरी जहांगीर, आमिर खलील, मलिक इमरान हमरा थे। इमरान नज़ीर ने UC 128 में शहरियों से मुलाकातें की। फजल इलाही, उमर फारूक, तकी अकरम और दीगर भी मौजूद थे। इमरान नज़ीर ने मलिक रियाज से हमशीरा की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया।